এই মুহূর্তে সরাসরি সেই ছবি হাতে রয়েছে অর্ঘ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি হাতে অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মঞ্চের দিকে, যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, তারপরে সেই অভিজিৎ মুহূর্ত যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে রামলালার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি খালি পায়ে একেবারে সনাতন বেশে হাতে অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মঞ্চের দিকে। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার হাতে রয়েছে অর্ঘ্য এবং আচ্ছা, আমি আরো বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রাম গবেষকও রয়েছেন এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও দেখতে পাচ্ছি যে তিনি হাতে অর্ঘ্য নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন। 50 মিনিটে তার যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পর্ব সেই কাজটি তিনি করবেন। এবং সবার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব নজরে পড়ার মতো, আজকে কিন্তু আলাদা কোনো নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বেশে কিন্তু মন্দিরের সিঁড়িতে এই মুহূর্তে মন্দিরের সিঁড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে ময়ূক আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছেন। ময়ূক একদিকে নরেন্দ্র মোদী পৌঁছে গিয়েছেন সেই ভব্য মন্দিরে, নরেন্দ্র মোদী পৌঁছে গিয়েছেন এবং তার পাশাপাশি উৎসব, এই মুহূর্তে উৎসবে মাতোয়ারা কোথায় সেই মুহূর্তে মাতোয়ারা, এবং সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে এখানে লাইভ চলছে। এই মুহূর্তে পুরো দেখো এখানে বাইরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে ঢুকে গেছেন মন্দিরে, ভব্য মন্দিরের প্রবেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাইরে উচ্ছ্বাস মানুষের, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমরা, বাইরে এবং ভেতরে গোটা দেশের মানুষ এই মুহূর্তে লাইভ এক্সক্লুসিভ রিপাবলিক বাংলাতে বিরাট কোহলির মতন একজন চলে এসেছেন এই মুহূর্তে। বিরাট কোহলি, অনেকে বলছেন বিরাট কোহলি নিজেই এসেছেন এই মুহূর্তে। পুরো ভিড় করে বিরাট কোহলির মতন দেখতে একজন তিনি এসেছেন, বিরাট কোহলির মতন দেখতে। তাকে দেখো, তার সাথে সেলফি তোলার ভিড় দেখো শুধু। এবং বিরাট কোহলি শোয়েব আখতারের থেকেও বেশি জোরে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন এই মুহূর্তে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভেতরে ঢুকে পড়েছেন, বাইরে মানুষের উৎসাহ এই মুহূর্তে। বাইরে উৎসবের আমেজ, অন্যদিকে আবেগে ভাসছে গোটা দেশ। মন্দিরের মধ্যে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাম মন্দিরের ভিতর থেকে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি রিপাবলিক বাংলায়। মন্দিরের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অযোধ্যা ধামে আজ রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি পৌঁছে গিয়েছেন এই মুহূর্তে। एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम এবং সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি সবাই ভেতরে রয়েছেন, বাইরে তাদের মতো দেখতে আরো বহু মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছেন। এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত রিপাবলিকে ফার্স্ট এন্ড এক্সক্লুসিভ যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি রিপাবলিক বাংলাতে। क्रांतिकारी क्षण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे गए। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में।
सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा